नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। सीएनबीसी आवाज दरअसल 18 साल पूरे कर चुका है और इन 18 सालों में हमने देखा है कि एक सपना हर किसी का होता है, अपने घर का, और इसी सपने को साकार करने में मदद की है और हमेशा आपके पीछे खड़ी रही है देश की सबसे बड़ी होम फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड। हमारे साथ आज केकी मिस्ट्री साहब जुड़ रहे हैं जो कंपनी के वाइस चेयरमैन और CEO हैं। मिस्टर मिस्ट्री, शुक्रिया इस मौके पर हमारे लिए समय निकालने के लिए। हमने पिछले 18 सालों में आपसे कई दफ़ा बात की है और साथ में हमने भारत की इस अर्थव्यवस्था के कई तेज़ी और मंदी के साइकिल्स भी देखे हैं। एक चीज़ यूनिक अब की बारी ये है कि जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में स्लो डाउन, रिसेशन का डर है, भारत की इकॉनमी थोड़ी सी रिजिलियंट दिखाई दे रही है। उसी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। अब की बारी भारत में ऐसा क्या खास है जो हम दुनिया से थोड़े से हटकर थोड़े से संभले हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो कोविड की जो सिचुएशन थी, जब पूरी दुनिया में क्रिएटेड सो मच ऑफ पैनिक एंड सो मच ऑफ स्ट्रेस, India may be handled it extremely well. Whether it is on the part of RBI, whether it is on the part of the government, हमने बहुत अच्छी तरह से वो full COVID situation handle की. We made sure that vaccination drive was so successful. Number one, number two, we made sure that there was enough liquidity in the system कि कोई भी कंपनी को दिक्कत नहीं हुई. Everyone was able to sort of ride the wave. तो हमने बहुत कुछ किया था from a regulatory standpoint, from a government standpoint, which stood us very well during COVID. So this is the role of the government and the regulatory body. But structurally, India के अंदर we have a young population. We are a domestic economy. हमारा reliance जो होता है with foreign entities is much lesser than most other countries. जी. We are so much dependent largely on what is happening within the country. So because the structural demand for everything in India is so strong, we came out very strongly. और जैसे जो लॉकडाउन लिफ्ट हुआ था sometime in May of 2020, almost very soon after that we started seeing the economy beginning to bounce back, and with every passing month we started seeing that the growth numbers in the economy were getting stronger and stronger, whether it was in terms of tax collections, GST, demand for money, credit demand, consumption and so on and so forth. मिस्टर मिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है, एक हम ऐसे मोड पर आ गए जहां पर दुनिया भर में वो टाइटनिंग शुरू हो चुकी है और इतनी टाइटनिंग शायद पिछले कुछ सालों में हमने एक साथ आती हुई नहीं देखी है। तो उससे अगर कुछ लर्निंग लेनी हो, हम कितने रेजिलिएंट रहेंगे? ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड पेंट अप डिमांड था, लोगों ने भरकर पैसा खर्च किया और चाहत थी उसको फुलफिल करने की, लेकिन इस टाइटनिंग रेट एनवायरनमेंट में ये डिमांड फिर कितनी टिकेगी? देखिए, सबसे पहले तो we must understand कि जो tightening इंडिया में हो रही है is much lesser than what you are seeing, for example, in the US. और again this goes back to the COVID time. The COVID time में we did not bring you see the US. The US went overboard. Most of the Western countries went overboard in terms of printing notes, pumping liquidity in the system, and all that caused runaway inflation. So आप US, UK, Europe में देखें, these countries are not used to inflation, and suddenly you saw inflation getting completely out of control. इंडिया में हमने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया. Inflation never went out of control. Yes, tightening is happened, but tightening is happened from a very low level of interest rates. जो हमने कोविड टाइम में इंटरेस्ट रेट्स इतने लो आ गए थे और उस लो बेस से रेट्स आर गोइंग अप. So you are saying कि tightening is there, but yes, tightening is there from an extremely low base. Now, अगर आप टाइटनिंग की भी बात करें ना, तो if you take housing loans, आपने शुरू में बोला कि housing loans, for so many years you are seeing that there is a structural demand for housing. आपको viewers को ये समझना चाहिए कि housing loan is a 15-year loan. कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं बोरो करता है. People borrow for 15 years. और कोई भी कहीं भी फिक्स्ड रेट 15 years का आपको प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलेगा. Everyone gives floating rate. जी हाँ. You cannot fix interest rates for 15 years. It is not possible. तो फ्लोटिंग रेट अगर आपकी लोन है तो इन अ कोर्स ऑफ 15 years आपको मिनिमम 3 या 4 साइकिल ऐसे आएंगे जब ये रेट्स नीचे आ जाएंगे और फिर वापस रेट्स ऊपर जाएंगे. तो वेदर यू आर टेकिंग लोन टुडे व्हेन रेट्स आर हाई और
6 months ago or 9 months ago when rates are low, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. Because over that period of the next 15 years, you will have cycles of rates going up and rates going down. So rates going up, yes, it has a sentimental impact. Sentimentally, people feel के should we buy something at this point of time? But structurally, इतना फर्क, economically इतना फर्क नहीं पड़ता. तो आपको क्या सेंस मिल रहा है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स अपनी टीम से जब बात करते हैं तो एक अंदाजा लगता है कि ऑन ग्राउंड डिमांड की सिचुएशन क्या है. कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी पर इम्पैक्ट आया, कुछ लोगों के लिए डिमांड जो शायद अब थी वो थोड़ी सी टल गई है कि मुझे नहीं लगता कि 6.5 में अगर मुझे लोन मिल रहा था तो मैं 8.5-9% के आसपास क्यों लूं. क्या ये अफोर्डेबिलिटी और ये डिमांड थोड़े समय के लिए मार्केट से बाहर निकल सकती है, या फिर रहेगी बट उतनी पीक पर नहीं रहेगी जितना शायद हमने 2021-22 में देखा था? पहले तो 21 में जो डिमांड थी, शुरू में जो डिमांड थी, वो थोड़ी बहुत पेंट अप डिमांड थी. वो पेंट अप डिमांड तो अभी सिस्टम से निकल गई. फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स, आई थिंक द लास्ट 6 months, 8 months, the demand has been actual demand for newer and newer, and it's no longer a pent up demand situation. हमने देखी है कि whenever interest rates go up, temporarily for a short period of time, शायद 7 days, 15 days, थोड़ी बहुत आपको you start seeing that the number of new applications coming down slows down a little bit. But this is a very temporary impact. Housing is a very long-term product, number one, which I explained to you. But more importantly, housing is a product that you need because it's a basic necessity. अगर आपका फैमिली को हाउस अच्छा लगा, they like the property, if the property is affordable in the context of your income, and most importantly, if your job stability is strong, and today job stability in India is very good, then you not hesitate buying a house just because interest rates are 1 or 2% higher than what they were 2 years ago when they were, or 1 year ago when they were at their lowest. Because historically 15 साल में ये सब adjust हो जाता है. Rates will go up, rates will go down, and it will all get adjusted. So most important is the feel good factor in the economy, which is extremely strong at this point of time. Job security जो बहुत अच्छी है आज marketplace में, and that is what is improved, and the improved sentiments is what is causing demand for everything. I'm not talking only housing loans, it's across the board. तो इस समय जो हमारा रेपो रेट है, क्या आपको लग रहा है चांसेस है जैसे शायद फेड 1-2 और साइकिल्स बढ़ा सकता है रेट की, उसी से तालमेल बिठाने के लिए शायद आरबीआई गवर्नर पर भी प्रेशर रहेगा कि अगर ग्लोबल बढ़ रहा है तो हम भी थोड़ा सा बढ़ा के रखें, और ऑफ कोर्स हमारे लिए दूसरा प्रेशर है कि हमें करेंसी को भी संभालना है. कितनी और रेट हाइक्स आपको लग रहा है आती हुई दिखाई दे सकती है, ताकि दर्शक भी प्लान कर ले अभी घर लेना है या फिर आगे के लिए टालना है? आपने बिल्कुल सही बताया कि इंडियाज रेट हाइक्स इज नॉट ओनली फॉर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन तो मेरे हिसाब से कंट्रोल में बाय एंड लार्ज हैज कम अंडर कंट्रोल. आई डोंट सी टू मच ऑफ अ कंसर्न ऑन इन्फ्लेशन एनीमोर. इट्स मोर टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी टू द रूपी, क्योंकि व्हेन फेड इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, normally you would see outflow of money out of the country. Agar outflow hua out of the country, then the rupee comes under some degree of pressure. Rupee then, rupee depreciating adds a little to inflation, because jo oil hum log import kar rahe hain, we are paying a higher rupee price for importing that oil. So thoda bahut to, if Fed increases interest rates, let's say going forward twice by 50 basis points, let's take the worst option. This I think is the worst option. It won't be more than that. Then possibly RBI could look at another 25 basis points hike in interest rates in the course of time. But जो interest rate अगर जो भी बढ़ना था, 90% of the interest rate increase is already factored in today. ओके, दैट्स गुड टू हियर कि यहाँ से आगे और इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा झटका नहीं लगेगा. लेकिन इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का जहाँ पर डिमांड पर या फिर थोड़ा डिसीजन मेकिंग में असर आता है, इसका क्या इम्पैक्ट आप लोगों की बोरोइंग कॉस्ट पर भी आने लगा है? और ऐसी स्थिति में फिर आप जैसे कंपनीज अपने पूरे बेस को स्केल करने के लिए क्या कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने मार्जिन्स को बनाएं और उसको बेहतर रखने के लिए क्या करते हैं? So पहले तो margins तो generally we try to keep margins at a flat level. We don't try to suddenly increase margins or let margins fall too much. Cost of funding goes up as interest rates go up in the system. Cost of funding goes up for everyone. If cost of funding goes up for everyone, it is offset by higher lending rates. So margin
होता है, स्प्रेड होता है, वो ब्रॉडली 5 बेसिस पॉइंट्स ऊपर नीचे इट विल कीप हैपनिंग, बट ब्रॉडली इट विल रिमेन विद इन अ फेयरली नैरो बैंड in which margins have been all these many years. So मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ इतना कुछ मार्जिन पे प्रेशर आना चाहिए या डिमांड पे प्रेशर आना चाहिए बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हाई। आप केके साहब, एक चीज हमने देखी थी, एंड स्पेशली मैं बात कर सकती हूँ पिछले 18-20 सालों में जो भारत में हुआ है, एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो थी वो हम देखते हैं करीब 8.5 से 9.5% के आसपास थी, और इसमें जो एवरेज बोरो या होम बायर की जो एज थी वो 35 इयर्स थी। बट इन द लास्ट 3 इयर्स, courtesy टू द स्टार्टअप कल्चर, क्योंकि कई सारे नए लोग वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं, उनको अच्छे खासे ईसॉप्स मिल रहे हैं, पैसा बन रहा है, तो वो एज भी घटी है। अब पहले कहा जाता था कि वो शायद फ्रॉथ है, क्या आप उसे अभी भी फ्रॉथ कहते हैं, या फिर वो होम बायर की जो 35 साल पहले 35 से 37 साल की उम्र थी वो वाकई में घट गई है और लार्जली वो इनकम है इनके पास इसीलिए खर्चा हो रहा है? देखिए, तो अभी तो इवन टुडे द पर्सन बाइंग अ होम इन इंडिया इज स्टिल समवन who's over 35. The average age of a home buyer in India is still about 36, 37, 38 in that ballpark. तो इट्स नॉट के स्टार्टअप होने से 20 साल या 25 साल में पीपल आर बाइंग हाउसेस। सी, कल्चरली हमारे इन आवर कंट्री, एंड इट्स अ वेरी गुड कल्चरल थिंग दैट वी हैव, is that usually you will find that couple after they get married stay with the boy's family for a few years, then they get children start growing up, they start needing their own independence, and that is the time people look to buy a house. So structurally जो demand होती है housing के लिए, वो in the olden days 20-25 years ago would have started at the age of maybe 40, 42, 43. Today it has come down to that 36, 37 year age. तो perhaps जो बीच में हमने देखा था कि 25-26 साल के लोग जो घर खरीद रहे थे, शायद एक थोड़ा सा एबरेशन था, या फिर अभी भी वो संख्या कम है? वो संख्या बहुत कम है। It is not that nobody buys a house when it's 25. ऐसा नहीं। Of course there are people who buy a house when they are 25 and 27 or 28, but that number of people is much lesser. The average अगर आप देखने को गए तो still around 36-37 years. एंड इत्तेफाक से सर, मैं 27 साल की ही थी जब मैंने घर का लोन लिया था, एंड फिंगर्स क्रॉस थिंग्स हैव बीन गोइंग वेल। बड़ी हिम्मत लगी थी तब, लेकिन अच्छा मौका मिला और मिल गया, और एक अच्छे रेट पर लोन मिला, और उसके बाद हमने देखा वो 14% तक का भी दर गया था। वक्त हो रहा एक छोटे से ब्रेक का, फटाफट लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।